السلام علیکم تمام میرے بھائیوں کو دوستوں کو میرے یوٹیوب کے چینل پہ السلام علیکم. اور تمام بھائیوں کو سب سے پہلے ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں دیکھنے کی مکمل ویڈیو کو دیکھیں اور کوئی بھی چیز آپ لوگوں سے مس نہ ہو. تو آج کا تھوڑا سا موضوع تھا اپنا ڈیجیٹل کیبل کے بارے میں، کیونکہ کافی ہم نے انالاگ پہ بنائے ہیں، ہر چیز پہ بنائے ہیں. تو ڈیجیٹل پہ میں ایک چھوٹا سا ویلاگ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل پہ بھی میں اگر بھائیوں کو موٹیویٹ کرنا چاہوں تو اس پہ تھوڑا سا آپ اس پہ ریسرچ کریں. اگر ڈیجیٹل پہ دیکھیں بھائی، میں آپ کو ایسے کمپیئر کر کے ڈیجیٹل اور انالاگ کو آپ کو کمپیئر کر کے دیتا ہوں کہ کیا فائدے آپ کو مل سکتے ہیں ڈیجیٹل پہ اور کیا نقصانات ہیں آپ کے انالاگ پہ. دیکھیں، ہم دو طریقے کیبل آپریٹر ہوتے ہیں. ایک کیبل آپریٹر جو آپ کے جیسے مثال کے طور پہ میٹروپولیٹن سٹیز میں ہیں یا بڑے سٹیز میں ہیں، بگ سٹیز میں ہیں، ان کو ہم کمپیئر کرتے ہیں چھوٹے کیبل آپریٹر سے جو B1 B2 کے کیبل آپریٹر یا B3 کے. ان سے کیا کمپیریزن ہے ان دونوں کا؟ تو اگر ان دونوں کو کمپیئر کرو گے تو وہ کمپیریزن نہیں ہوتا. اور ڈیجیٹل سے کیا فائدے آپ کو مل سکتے ہیں اور انالاگ سے آپ کو کیا فائدے تھے اور کیا آگے چل کے آپ کو نقصانات مل سکے. کیوں نقصان یہاں پہ سب سے زیادہ اگر کسی کا ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کیبل آپریٹر کا. اب میں ایک چھوٹا سا مثال دے دیتا ہوں. ڈیجیٹل پہ ہم نے کچھ ٹائم پہلے جن بھائیوں نے لگایا وہ ٹھیک ٹھاک وہ فائدہ کر چکے ہیں. اور آج کے دور میں، آج کے وقت میں آپ کے پاس بگ سٹیز میں IPTV اور رولر میں ڈیجیٹل ہی کام آ جائے گا. مثال B1 B2 B3 کے اگر آپ کے پاس لیسنس ہے تو وہاں پہ ڈیجیٹل ہی کام آئے گا آپ کو. IPTV آپ کو ملتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ IPTV کے اگر کوئی بھی کمپنیز ہیں، دیکھو لوکل تو IPTV الگ چیز ہوا، اس کو لازمہ مینٹین کرنا ہوتا ہے، اس کا مینٹیننس کا خرچہ ہوتا ہے. یہ وہ چیز ہم کیونکہ ایک 80-90 چینل سے اوپر افورڈ نہیں کر سکتے. اگر ہم افورڈ کر بھی لیتے ہیں تو اس کے لیے کاسٹ بہت زیادہ آ جاتا ہے. ہمیں PC بہت طاقتور چاہیے اس کے لیے اور اس کے ساتھ بہت کچھ چاہیے. لازم ان کو کمپنی PTA کا لائسنس بھی چاہیے اس کے لیے، جو ہم ارینج نہیں کر سکتے. میں ایک سمپل سا مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں، بڑے سٹیز میں تو وہ آلریڈی IPTV پہ جاتے ہیں. میں یہ چھوٹی سٹیز کے لیے بنا رہا ہوں ویلاگ کہ کیا نقصانات ہم پہلے ہمیں مل رہے تھے اور آج کیا فائدہ ہو رہا ہے ہمیں ڈیجیٹلائزیشن پہ. اگر مکمل طور آپ ڈیجیٹل پہ جاؤ گے، کبھی بھی ڈیجیٹل اور انالاگ کو آپ ایک ہی ٹائم دونوں کو چلاتے آپ کا وقت گزر جائے گا، مگر آپ کا کسٹمر کبھی بھی مکمل طور ڈیجیٹل پہ شفٹ نہیں ہوگا. ڈیجیٹل پہ شفٹ کرنے کے لیے آپ کو اپنا کوشش کرنا پڑے گا. آپ کو کچھ ایسے چیزیں کرنے پڑیں گے جو مجبوراً جو کسٹمر ہے وہ آپ کا ڈیجیٹل پہ شفٹ ہو جائے. کیونکہ دو نقصانات، کسٹمر جو نقصان اپنا سمجھتا ہے وہ سب سے زیادہ سمجھتا ہے اس چیز پہ کہ دیکھیں ایک گھر کے اندر اگر 4 ٹیلی ویژن ہے تو وہ انالاگ کے ایک ہی کنیکشن سے چاروں ٹی وی چلتے ہیں. اور ڈیجیٹل پہ ایسا نہیں، تو ڈیجیٹل پہ لازماً ہر سیٹ ٹاپ باکس ہر کسی کے لیے الگ الگ چاہیے ہوتا ہے. ابھی آپ ایک نمبر آف چینل زیادہ چلا سکتے ہیں ڈیجیٹل پہ. مثال کے طور پہ آپ کے پاس اس ٹائم اگر 200 چینل چل رہے ہیں تو 200 کے 200 چینل جو آپ کے ہیڈن سے نکل رہے ہیں ڈیجیٹل پہ، وہ پرفیکٹلی جا کے یوزر تک پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس رزلٹ اچھا ہے تو 200 کے 200 آ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا انالاگ کی طرح کہ آپ کے شروع کے نمبر یا آخر کے نمبر جا کے مس ہو جائیں گے. کسی نہ کسی حال میں مس ہو جاتے ہیں، آپ کتنی بھی کوشش کرو مسنگ کر جاتے ہو. میں نے IP انالاگ کو بھی دیکھا، بولتے ہیں لوگ کہ ڈیجیٹل کی طرح ہے، ڈیجیٹل جیسا ان کا رزلٹ ہے، مگر مجھے نہیں لگا کہ وہ ڈیجیٹل کو بیٹ کر سکے یا ڈیجیٹل کے قریب آ سکے. بہت فرق ہے رزلٹ میں. آگے چلتے ہیں ہم ڈیجیٹل پہ. اگر مثال کے طور پر میں ایک سمپل چھوٹا سا مثال آپ کو دیتی ہوں. میں ایک وقت میں میں خود جو ہے ایک انالاگ چلا رہا تھا. انالاگ میں کیا کسٹمر تھے میرے پاس اور ڈیجیٹل پہ کیا کسٹمر ہے میرے پاس، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. ہم کچھ بھی کر لیں، ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں پرابلمس جو فیس کرنے پڑتے ہیں وہ ایک ہمیں رزلٹ کا پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے. سب سے زیادہ رزلٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے. سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ کا
जो लैंडमैन है वो कितने हद तक इन चीज़ों को कंट्रोल करेगा, कितने हद तक वो कोशिश करेगा कि किस घर में और किस किस घर में चोरी का कनेक्शन चल रहा है। अगर मिसाल के तौर पे एक घर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, अंदर ही अंदर खाते चलते रहते हैं, क्योंकि हम कस्टमर, बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो एक दफ़ा तार अपने घर के अंदर इन करते हैं तो उसके बाद वो केबल ऑपरेटर की भी ज़रूरत नहीं होता, लोकली अपने बोस्टर लेके और आगे 10 और कनेक्शन चला लेते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हम उसे वॉच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, रोज़ रोज़ हम उनके घरों के अंदर तो नहीं जा सकते। तो इन मसले मसाइल की तरह जैसे मैं केबल में एंट्री किया था, केबल में एंट्री करने के बाद 2 साल के अंदर मुझे पता चला कि इनलॉक को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और इनलॉक से हम मैक्सिमम कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। बड़े सिटीज़ की क्या मजबूरियां हैं इनलॉक चलाने का और छोटे सिटीज़ की कौन सी मजबूरियां हैं। अब बड़े सिटी का फर्स्ट नंबर पे मैं आपको कुछ सीधा सीधे चीज़ें बता रहा हूँ। बड़े बड़े शहरों में एक लूप होल्डर का सिस्टम होता है। लूप होल्डर जो होते हैं वो लाजमन आप भाइयों को पता है कि तकरीबन एक हेडन वाला होता है, उसके अंदर उसको 100-200 लूप होल्डर होते हैं। तो लूप होल्डर को वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आप जो है डिजिटलाइजेशन पे चले जाओ। और सेकंड नंबर पे एडवर्टाइजमेंट का मसला है। जो एडवर्टाइजमेंट जो इनलॉक पे मिल जाता है उनको, तो वो डिजिटल पे नहीं मिलता उनको। तो एक तो वो मसला हुआ, क्योंकि वो बड़े सिटीज़ जैसे कराची, हैदराबाद, वो ज़्यादातर उनका स्टेक जो होता है वो होता है हेडन के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर और सीपी के ऊपर। सीपी क्या चीज़ है वो आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ आपको। देखिए, अब मिसाल के तौर पे हम जहाँ पे चैनलों को अपना पोजीशन दे देते हैं, हमारे पास पोजीशन के कोई 10 रुपये भी हमें नहीं देंगे, क्योंकि हम छोटे शहरों में रहते हैं और हमारा तो चैनल का तो कोई इशू ही नहीं है। मिसाल के तौर पे कराची में या बड़े शहरों में जो नंबर्स होते हैं चैनलों के, ये नंबर पे फ़लाना चैनल चल रहा है, ये नंबर पे फ़लाना चल रहा है, ये नंबर पे फ़लाना चल रहा है, तो इनके लिए चैनलों को पे करने पड़ते हैं। चैनल वाले जितने बार से कुछ भी बोले मगर वहाँ पे करने पड़ते हैं केबल ऑपरेटरों को, और केबल ऑपरेटर उनसे ठीक ठाक मुआवजा लेते हैं नंबरिंग का। वो चैनल को नंबर देने के भी केबल ऑपरेटर उनसे पैसे लेते हैं। ये बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, छोटे शहरों की नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं मिलता। हमें तो यहाँ पे काफ़ी दोस्त हैं जो उनको तो सेटअप बॉक्स तक नहीं मिलते। तो उनका 2 मजबूरियाँ और 3 मजबूरियाँ मैंने आप लोगों को गिनाया। एक नंबर पे लूप होल्डर, क्योंकि उनके पास खुद के पास बहुत कम ही कनेक्शन होते हैं। एक हुआ लूप होल्डर का मसला। दूसरे नंबर पे उनके पास सेकंड मसला आ गया, किस चीज़ का? वो सेकंड मसला उनके पास आ गया वो सीपी का मसला। जैसे मिसाल के तौर पे चैनलों को नंबरों का, नंबर पोजीशन नंबर देने का लाजम डिजिटल पे, तो आपके पास एक वाफर मकदार में चैनल्स होते हैं, तो आप लाजमन कैटेगरी बनाते हैं तो वो किसी न किसी कैटेगरी में फ़िक्स हो जाते हैं। तो एनालॉग पे ऐसा नहीं, मैक्सिमम छोटा एक लाजम 60 से 70-80 चैनल, 90 के अंदर 70 चैनल अगर अलाउ है आपको, 70 के अंदर आपको रखने पड़ते हैं। तो लाजम जो पेमेंट करेगा वो आगे चलेगा। अच्छा, तीसरे नंबर पे एडवर्टाइजमेंट का मसला है। तो लाजमन वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट उनको मिलता है, हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। एडवर्टाइजमेंट हमने चलाए, एडवर्टाइजमेंट से हमने कमाया, मगर इस टाइम एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है एडवर्टाइजमेंट। तो लाजमन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटे शहरों में एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटे शहरों में आपका सीपी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तीसरे नंबर पे आपके पास लूप होल्डर का भी नहीं है। यहाँ पे हेडर भी आप चलाते हो, कनेक्शन भी आपका है, हर चीज़ आपका है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, जबकि हर चीज़ हम ही खर्चा करते हैं, सिस्टम पे भी हम लगाते हैं, लाइनों पे भी हम लगाते हैं, हर चीज़ पे हम लगाते हैं, फिर हमें पेमेंट कहाँ से निकालना होता है? तो हम लाजमन यूज़र से निकालना पड़ता है पैसे, क्योंकि वहीं से अखराजात निकालते हैं हम लोग। काफ़ी दोस्त होते हैं कि यार कराची में ये पैसे लेते हैं और आप यहाँ पे ये पैसे लेते हो। भाई बहुत सारे उनके तो लाजमन आपको पता है कि लूप होल्डरों का मसला है, कुछ भी है, मगर वो पेमेंटों का तो वो इशू नहीं है। अच्छा, हम डिजिटल पे जब चले जाते हैं तो डिजिटल पे अगर आप जहाँ पे एक कनेक्शन है, 2 कनेक्शन, 3 कनेक्शन आप चल, पहले तो चोरी का तो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। वहाँ पे आप चोरी बिल्कुल रोक सकते हो, बिल्कुल 0% आपका चोरी हो जाएगा। वो सेटअप बॉक्स आपके सिस्टम से निकल जाता है, आपने स्क्रैम्बल पे लगा लिया है, सिस्टम के अंदर आपका पूरा डेटा रखा हुआ है। कोई भी लड़का अगर खुदा ना आपको पता ही नहीं है, अगर वो सिस्टम के अंदर चला गया और वो रिचार्ज कर लिया, आप शाम के टाइम में चेक कर सकते हैं कि भाई कौन
कौन से कार्ड रिचार्ज हो गए हैं आज के दिन में। अगर उनसे सवाल जवाब भी कर सकते हो कि यार ये कार्ड रिचार्ज हुआ है, इसके पेमेंट आपने दिए हैं या नहीं दिए हैं, वो सारा कुछ आप डेटा आपके पास है, अवेलेबल है। सेकंड पे आपके चैनल स्क्रैम्बल है। स्क्रैम्बल के मुराद अगर वो डब्बा है, अगर वो डेट आ जाएंगे उसके, अगर वो डेट पे पेमेंट नहीं कर सका तो हमारे पास ऐसा सिस्टम रखा हुआ है 10 तारीख को, अगर हमारे पास 9 तारीख के रात तक पैसे नहीं आते, 10 तारीख के सुबह वो रात को 12 बजे वो मुकम्मल चैनल सारे उनके बंद हो जाते हैं, स्क्रैम्बल हो जाते हैं। तो अगर वो उससे पहले पेमेंट कर देता है तो उस हिसाब से उनको पहले से रिचार्ज हो जाते हैं। अगर वो नहीं करते, वो लास्ट में जिसका जहाँ पे मर्ज़ी हो वो अपना रिचार्ज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो 20 तारीख को पेमेंट कर रहा है तो हमने उनको 10 तारीख का डेट दिया, नहीं, अगर वो 20 को कर रहा है तो हम उसको 20 तारीख का ही डेट दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें तो हम अगर मिसाल के तौर पे यूज़र भी हमारे हैं, एडवर्टाइजमेंट हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करना है, हम अपने यूज़र को बढ़ाएं, क्योंकि यूज़र जब तक बढ़ेगा नहीं, हमारा इनकम होगा नहीं, तो हम कहाँ से टैक्सेस देंगे। सबसे ज़्यादा देखो पेमरा को भी काफ़ी मुश्किलात होते हैं कि पेमरा वाले भी यही हमें बोलते रहते हैं काफ़ी जगहों पे थे कि यार हमें जो पेमेंट लेने में भी बड़े दुश्वारियाँ होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सफ़र कर रहा है केबल ऑपरेटर के पास वो मराज या वो पैसे नहीं है जो हमें भी पे कर सके। तो इसका जो आसान हल तो नहीं बता सकता मैं, बोला हल नहीं, बस एक आप अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को इस मुश्किल से आप अब इजी की तरफ लेके जा सकते हो। अगर आप कोशिश करोगे, अब अगर चाहते हो कि यार मैं केबल से ही कमाना चाहता हूँ, केबल को ही चलाना चाहता हूँ, ये अपने आप को नुकसान नहीं देना चाहता हर वक्त कि मुझे जो है ना, मैं जो इनलॉग चलाते चलाते देखा, अब आजकल तो इनलॉग के पार्ट्स भी नहीं मिलते हैं। अगर आप आईपी इनलॉग चलाना चाहते हो उसके लिए भी आपको डिजिटल की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास डिजिटल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं सिंपल छोटे केबल ऑपरेटर को नहीं बोलता कि 200-300 चैनल वाले अगर कनेक्शन वाले का केबल ऑपरेटर है तो वो ज़रूरी है उनके लिए डिजिटल करना, डिजिटल कॉस्ट भी है, उसके बाद सेटअप बॉक्सों की रेटें हैं। तो अगर वो 1000, 1500, 1200 यूज़र ऑलरेडी चला रहा है, तो अगर वो डिजिटल की तरफ चला जाएगा 1200 यूज़र की जगह पे वो 1800 यूज़र चला लेगा। 600 यूज़र उसके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, शायद वो इस चीज़ को माने या ना माने, उसके 600 से 700 यूज़र ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। आप क्या करते हो, अगर मिसाल के तौर पर एक यूज़र आप 400 रुपये लेते हो, अगर 2 सेटअप बॉक्स वहाँ पे दे देते हो तो आप 700 ले लो, दो वहाँ पे थोड़ा सा उनको मार्जिन दिया करें। अगर आप 3 दिए तो फिर लाजम 50-50 रुपये हर एक बॉक्स में आप उससे शॉर्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप चलाएंगे, आप देखें अगर आपके पास 400 यूज़र है वहाँ पे वो 800 यूज़र बन जाए तो आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। और डिजिटल पे ये नहीं है कि डिजिटल का सेटअप बॉक्स एक दफ़ा किस कस्टमर के पास लग गया तो इंशाल्लाह उम्मीद है वो अपना सेटअप बॉक्स बंद नहीं करेगा। अगर करेगा तो उनको ये भी पता है यार हम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हैं तो हमारे ऊपर पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। क्योंकि इनलॉग का आपको देखें, अगर हम 2 महीने अगर घर नहीं होते हैं तो इनलॉग वाले को उनको तो जब तक इन्फॉर्म नहीं करते तार काटने का तब तक वो आपको वापसी पे आएगा। आपने बोला यार 2 महीने के मैंने नहीं चलाया, 2 महीने के फिर भी वो बोलेंगे यार पेमेंट कर लो। अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती के लिए तो तारों को काटना पड़ता है। यहाँ पे ये नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है कि इंटरनेट की तरह आपको भी तकलीफ़ नहीं होगा, यूज़र को भी तकलीफ़ नहीं होगा। मैं जितना मेहनत और जितना मैंने कोशिश किया आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि केबल बहुत अच्छा आपको यानी एक मुनाफा दे सकता है अगर आप कोशिश करें, अगर इसको समझने की, अगर कोशिश करें इससे कुछ कमाने की, अगर कोशिश करें आप कुछ इनसे निकालने की। अगर एज़ आ मज़े के हिसाब से या एज़ बस आप इंटरटेनमेंट के हिसाब से अगर इसको समझेंगे तो आपको ये कुछ नहीं देगा। अगर आप सोचेंगे कि इनमें से कुछ न कुछ हमें निकालना है तो अगर आप 1 लाख रुपया कमाते हो तो 50,000 रुपये शार्ट कर लो, 30 से 40,000 रुपये इसको वापस रिटर्न कर लो। आप अपने सिस्टम को मजबूत रखेंगे, आप अपने लाइनों को मजबूत रखेंगे, अगर आप हर 3 चीज़ को प्रॉपर करेंगे इंशाल्लाह आप नुकसान में कभी नहीं जाएंगे, मुनाफे में जाएंगे। आज आप 100 यूज़र चला रहे हैं, इंशाल्लाह 200-300 यूज़र आप चला सकते हैं। कोशिश करें जितना कोशिश हो सकता है। देखिए हर किसी को अल्लाह ने, देखे ना, अल्लाह ताला हर बंदे को जब जिस इंसान को पैदा किया उसको रोज़ी रिज़्क अल्लाह के हाथ में है। डिशों वाले देखो, डिश का आप डरो मत कि यार डिश है हमारे शहर में डिश लगे। डिश क्यों लगता है, आप कोशिश करें केबल ऑपरेटर डिश जब लगता है
وہ آپ کی کمزوری کی وجہ سے لگتا ہے. آپ مضبوط ہو, آپ کا نیٹ ورک مضبوط جا رہا ہے میرے بھائی, کوئی نہیں ڈش لگائے گا. لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے, آپ کی کمزوری کی وجہ سے وہ لگاتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے, ہم کچھ دیکھ نہیں پا رہے ہیں, ہمیں نہ رزلٹ مل رہا ہے نہ کچھ مل رہا ہے, تو لازماً وہ ڈشوں پہ چلے جائیں گے. تو ان کا بھی قصور نہیں ہے, ان کو تو نہ کچھ دیکھنا ہے. جو ڈشوں کے کام کرتے ہیں وہ زور زبردستی کر کے گھر والوں کو تو نہیں بولیں گے یار آپ کیبل کو نکال دو ہم وہاں پہ ڈش لگاتے ہیں. گھر والے جب آپ سے پریشان ہوں گے تو ہی ڈش پہ چلے جائیں گے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں آپ بھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگا. اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.